الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، کل ہم نے رسالت پڑھی، اور رسالت کے اندر سب سے پہلا رسالت کا تقاضا کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سب سے پہلا جلدی بتائیں۔ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بالکل وہ نہیں بتایا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ بات کی ہے۔ سب سے پہلا اس رسالت کا تقاضا یہ کہ تمام رسول اور انبیاء جو ہیں ان سب کو اللہ کا رسول اور نبی مانا جائے۔ اگر آپ نے کسی ایک کو اس میں سے نکالا کہ وہ اللہ کا نبی نہیں ہے تو آپ کا ایمان نہیں ہے اللہ پر۔ اس لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام انبیاء جو اللہ نے بھیجے ہیں، وہ تمام رسول جو اللہ نے بھیجے ہیں، ان سب پر ایمان کہ وہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ تمام رسولوں کا کیا پیغام تھا؟ جلدی بتائیں۔ جی، آیتیں پڑھنے کا موقع ہوتا ہے، آیت پڑھا کریں۔ ہاں، اعبد اللہ، بالکل آپ نے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا، آپ دیکھیں یہاں آپ لوگ خود پوری طرح سمجھیں۔ مشرک بنا خالقیت پہ ایمان رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کی خالقیت پر مشرکوں کا ایمان تھا یا نہیں؟ تھا، بالکل تھا۔ کیسے کہیں گے تھا؟ کیونکہ سر قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ یہ زمین آسمان کس نے بنائے، ایکسیلنٹ، جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے تو وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیے۔ تو اللہ کو خالق تو مانتے تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا ان کا؟ جلدی بتائیں۔ سر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی اللہ کی عبادت کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتے تھے اور وسیلے بناتے تھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ سر الوہیت میں شرک کرتے تھے۔ بات یہ ہے اور سے انعام بنائے ہوئے تھے۔ وہ اللہ کی خالص عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اپنے بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ لہٰذا ان سب سے پہلے اللہ نے مطالبہ کیا اعبد اللہ، خالص عبادت صرف اللہ کی کرو۔ تو یہ توحید کی اصل ہے، ورنہ خالقیت پر تو وہ بھی ایمان رکھتے تھے۔ جیسے آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اسلام، اللہ نے پیدا کیا۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کہتے ہیں رازق بھی مانتے تھے، لیکن معبود تنہا اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ یہ ہے، اس چیز کو نوٹ کریں آپ۔ قرآن صرف اس سے جذباتی لگاؤ نہیں، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ سنیں آپ پیج نمبر 3-4 پہ جو میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، بڑا رسالت پر قرآن و سنت کا بڑی جامع آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے پاس نساء کی 59 پڑھ رہا ہوں، پیج نمبر 4 پر۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں اللہ نے کہا کہ 3 لوگوں کا حکم مانو، ایک اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو آپ کے حکمران ہیں۔ اگر حکمرانوں کا کب آپ نے ماننا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اگر وہ اللہ اور رسول کے رسول کے حکم کے مطابق بات کریں تو مانو، اگر اس کے ہٹ کے بات کریں بالکل نہیں ماننا۔ کیوں؟ یہ شرک ہو جائے گا کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی نہیں کر رہے۔
تو تینوں کی عبادت اولل امر اس وقت جب وہ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق دیں. آگے بڑا کلیئر ہے، دیکھیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو. اب یہ بتائیں تنازع یا جھگڑا کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ آپس میں بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں بڑی کلیئرلی بات کو سمجھیں خدا کے لیے. آپ بہت اچھے طالب علم ہیں، یہ چیزیں میں جب آپ کے سامنے کھولتا ہوں تو دیکھیں. نہ اللہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ مالک خالق رازق حاکم ہے. نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وہ وحی کے مطابق بات کرتے ہیں. تو جھگڑا ہو سکتا ہے اولی الامر کے ساتھ. اب کوئی اختلاف ہو جائے، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری مسلم دنیا میں اولی الامر جو ہیں، حکمران جو ہیں، جن کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چل رہے. یہ بات مان رہے نہیں سمجھ رہے؟ بالکل ٹھیک ہے سر، ایسے ہی ہے. اچھا، تو اب ان کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے کسی بات پر، اور وہ بات جھگڑا ہوگا کہ بات اسلام پر ہے غیر اسلام میں ہے، تو فیصلہ کہاں سے لیں گے؟ بڑے غور سے سنیں. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس جھگڑے کو لے جاؤ فیصلے کے لیے کس کے پاس؟ اللہ اور رسول کے پاس. جی سر. اللہ کے پاس لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. قرآن کی طرف جاؤ. قرآن کی قرآن کے طرف مطابق. جتنا میں سوال کروں جتنا جواب دیں. اور رسول کے پاس فیصلہ لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ سنت کی حدیث طرف. سنت حدیث کے مطابق. قرآن و حدیث، اللہ کے قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ حدیث بھی وہی ہے، لہذا آپ ان کے پاس لوٹائیں. اگر شرط بتا دی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی مومن ہو یعنی اللہ پر بھی تمہارا ایمان ہے اور آخرت پر، تو پھر تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اول الامر کے ساتھ جب بھی اختلاف ہو تو فیصلہ قرآن و سنت سے لو. یہاں تک کوئی سوال جلدی کریں. اب آگے آخر میں بڑے غور سے دیکھیں، بڑے غور سے دیکھیں. ذالک خیر، یہی صحیح طریقہ کار ہے. مومن جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہو اس کو فیصلہ کس کا لینا چاہیے؟ قرآن و سنت. اور اگر ہم نے جیسے آپ دیکھ لیں معاشی اور معاشرتی معاملات میں ہم فیصلہ لے رہے ہیں یورپ اور امریکہ کا، لے رہے نہیں لے رہے؟ لے رہے ہیں سر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہاں پہنچ چکے ہم. آپ فحاشی اوریانی کا سیلاب امڑ آیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ اور رسول کے فیصلے نہیں لیے. اور پھر آپ دیکھیں معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور اللہ بالکل. کی گرفت میں ہے. ہم لوگ آج عذاب کی گرفت میں ہیں. یہ ہے اللہ اور رسول سے فیصلے نہ لینے کا مقصد. اب آپ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ. اچھا، اب آگے مجھے بتائیں. ایک خیر کا مطلب تو سمجھ آ گیا آپ کو، میں نے سمجھا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسی مثال کو لے کے چلیں، جلدی بتائیں. معاملات بھی صحیح ہوں گے، فحاشی وغیرہ بھی. بہتر ہوگا. اور آخرت بھی اچھی ہوگی سر. خدا کے بندو، خدا کے بندو، کتنا آپ بڑی اہم بات قرآن نے فرمائی ہے. صحیح طریقہ کار بھی بتا دیا اور انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہوگا. آج آپ دیکھ لیں ملک کن مصیبتوں میں گرفتار ہے. کوئی عزت نہیں ہماری، ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہے. یہ ہے احسن التاویلا. یہ برا انجام اس وجہ سے ہے، اگر ہم نے فیصلے قرآن و سنت سے لیے ہوتے تو آج دنیا میں ایک طاقتور قوم کی حیثیت سے ہم زندہ ہوتے. آپ دیکھ لیں مدینے کی ریاست کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا خلفائے راشدین کا، قرآن و سنت کی حق سے فیصلے ہوتے تھے تو وہ ریاست مثالی ریاست تھی. اور آج ہم نے دین کو چھوڑ کر لوگوں طاغوت کے فیصلے نافذ کیے تو دیکھ لیں کیا انجام ہے ہمارا. ایک ایک آیت کس طرح کھول کھول کے بیان کرتی ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟
جی سر بالکل سمجھ آئیے. افضال صاحب بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ سر ہمارا انجام تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے ہی چلے گا ہمارا. اللہ نے جبر فیصلہ ہے یہاں فرما پہ، دیا. دیکھیں نا جبر ہے کیسا سر. اللہ کا فیصلہ سن لیا آپ نے کہ انجام کار کتنا برا ہوگا اگر آپ اللہ کے فیصلے پہ نہیں. اگر قرآن و سنت سے فیصلہ لیں گے تو آپ کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین ہوگا. اللہ اکبر. ایک آیت کتنی زبردست ہے. اچھا کوئی سوال جلدی کریں، پڑھ کے آپ نہیں آتے نا. آپ سنیں بڑے غور سے. توبہ کی 24 بہت اہم آیت ہے. ہر آیت ہی اہم ہے لیکن ایک پہلو سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے غور سے دیکھیں. قل ان کان آباؤکم، آباؤکم پہ نمبر 1 لکھیں، وابناؤکم نمبر 2 لکھیں، واخوانکم نمبر 3 لکھیں، وازواجکم نمبر 4 لکھیں، وعشیراتکم نمبر 5، واموال اقترفتموها نمبر 6، وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں، وتجارتا تخشون کسادها نمبر 7، وہ تجارتیں جن کا تمہیں مندہ پڑنے کا ڈر ہے، ومساکن ترضونها نمبر 8، وہ کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، وہ بنگلے جن کو تم حسرتوں سے دیکھتے اور کہتے ہو کاش میرے پاس بھی ہوتا. 8 چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں. ابناؤکم تمہارے بیٹے بیٹیاں، ساری آباؤکم تمہارے آباء و اجداد، ابناؤکم نمبر 2 پہ تمہارے بیٹے بیٹیاں، نمبر 3 اخواتکم تمہارے جو بھائی ہیں، اور نمبر 3 پہ یہ، اور 4 پہ ازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیراتکم اور تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموها وہ مال جو تم نے کمائے ہیں. اچھا یہ اس کو کیوں کہا کہ وہ مال جو تم نے کمائے ہیں؟ جلدی بتائیں. بڑی خود ہمت محنت ہے. سے کمایا گیا اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے سر. وہ جو بندہ تنخواہ لے کے آتا ہے نا، کماتا ہے خود، بڑا اس کو سوچ سوچ کے خرچ کرتا ہے، اور جب اس کو وراثت میں بہت ساری جائیداد مل جاتی ہے نا، وہ لٹاتا ہے، عیش و عشرت کرتا ہے. اس لیے کہا کہ وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں. قرآن کا دیکھیں خالق کائنات نے کس طرح چیزوں کو سوچ سمجھ کے اپنے کامل علم کی بنیاد پر بیان فرمایا. وہ مساکن ترضونها، اور 8ویں چیز ہے وہ کوٹھیاں جو تمہیں بہت پسند ہیں. آپ مجھے بتائیں ان 8 چیزوں میں دنیا کی ہر چیز گن نہیں گئی جو انسان کو پسند ہے؟ بتائیں مجھے. سب کچھ سبحان اللہ. قرآن کو سمجھیں کہ کس ہستی نے نازل کیا اور کن کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں. آپ سنیں آگے بڑے غور سے. 8 چیزیں اگر تمہیں پسند ہیں 3 چیزوں کے مقابلے میں، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں، برسولہ، اگر آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل نہیں بنایا، جو اللہ نے کہہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو 3 چیزیں ایک طرف ہیں اور 8 چیزیں دوسری طرف ہیں. جہادن فی سبیلہ، ذرا نوٹ فرمائیں عمل کون سا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. اگر یہ کرے گا تو باقی تو یقیناً پورے کی طرح کرے گا، جب جا کے اس کو دل ٹھوکے گا کہ میں نے اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے سب کچھ خرچ کرنا ہے، حتیٰ کہ جان بھی دینی ہے. کیا بات ہے. قرآن نے کس طرح بحث کو ایک آیت کے اندر سمیٹ دیا ہے. جی یہ سر. 8 بڑے غور سے سنیں، پہلے توجہ سے سنیں بات. اچھا اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ زیادہ پسند ہے نا، یہ دنیا کی ساری 8 چیزیں، اللہ، رسول اور جہاد، فتربصوا، اوئے ہوئے بڑی دھمکی اللہ کی طرف سے، پھر ذرا انتظار کرو. کس بات کا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. تو اگر ہم نے اس بات کی خلاف ورزی کی جو اللہ نے یہاں بیان کی ہے کہ ہم نے ان 8 چیزوں کو پریفر کیا جو آج مسلمان کر رہے ہیں ان 3 چیزوں کے مقابلے میں، تو اللہ کا امر کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں. عذاب سر. ہائے 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 ہائے. ڈرے یہ سر ابھی جو عذاب آیا ہوا ہے پاکستان. پلیز ذرا
बात को पहले पूरी तरह समझें। तो अल्लाह का अजाब बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन पहले हम इसको समझें, अपनी जात के हवाले से समझें। तो अब आगे अल्लाह कहते हैं ला वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिक कौम, ये अल्लाह ने उसूल बता दिया कि फासिकों से अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता। अब फासिक का मुराद यहाँ क्या है, बड़े सोच के जवाब दीजिए। आप जी ये जो 5 चीजें आपने ये 8 बताई हैं, ये 5 चीजें 3 चीजों से ज्यादा अगर महदूद हो जाएंगी तो फिर अल्लाह उनको फासिक कहेगा। आपने अभी 5 कह दी, मैंने 8 बताई हैं, लिखवाया है सब सब आपको। रिश्तेदारियां एक कर दी ना। जी जी, जो इन 8 चीजों को अजीज रखेगा वो लोग फासिकों में से हैं। अब बताएं फासिक की डेफिनेशन आ गई कुरान से कि नहीं? अगर मैंने ये आ आयत गई समझ तो अब आप मुझे बताएं, मैं और आप इस आईने में अपनी शक्ल देख के बताएं कि वाकई हम फासिक हैं कि नहीं। सर बुरा हाल है हमारा। अल्लाह अकबर, ये है कुरान, ये है कुरान फहमी के हम अपनी कुरान कहता है कि ये कुरान तुम्हारा ही तो जिक्र है, अफला ताकिलून, इतनी बात नहीं समझते? हाय हाय, ये कितनी जबरदस्त आयत है हिदायत के लिए। और मुझे जी अपनी तो जी तौबा की आयत नंबर क्या है? क्या मतलब? सूरत तौबा की आयत है ये। हाँ, 24 जी, ये 24 नंबर तौबा, आयत है। मैंने हैंडआउट भेजा है आपको। सर जी मेरे पास जो पहले हैंड आउट है ना उसमें ये आयत नहीं है, इसलिए मैं मैंने आपको भेजा है या नहीं? अभी उसी से पढ़ा रहा हूँ। जी सर जी वो भेजा हुआ है, मेरे पास सामने पड़ा हुआ है ना दूसरा, तो इसलिए मैं उससे तो आप उसको क्यों नहीं पढ़ रहे जो मैंने अभी भेजा है, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ? सर गलत ये तो बात आप, मोबाइल में है ना, मेरे पास वो सामने पड़ा हुआ है, ये मोबाइल में इससे अभी नहीं खुला। अब आप बहानेबाजी मत करें। जब मैंने आपको भेज के उसी से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके सामने आयात रहें, अब आप मुझे पिछले हैंडआउट का दे रही हैं हवाला। अच्छा, तो आप देखें कि हम इन आयात को पढ़ के फिर अपनी जात को सामने रख के और बिल्कुल बगैर किसी तासुब के देखें कि हमें तो अपने बच्चों, अपनी माल कोठियों से इतनी मोहब्बत है नाउजुबिल्लाह कि अल्लाह के हुक्म की भी परवाह नहीं करते, रसूलुल्लाह सल्लम के अहकामात की भी परवाह नहीं करते। और जहाद फी सबिल्लाह तो दूर की बात है, अगर मोमिन जहाद फी सबिल्लाह करते तो आज इस्लाम दुनिया का नंबर 1 पे होता और ताकतवर तरीन होता। कितनी जबरदस्त आयत है, नोट किया आपने कि नहीं? जी सर। अच्छा, अब आगे देखते, आगे मोमिनीन की इताअत के लिए अल्लाह ने नमूना क्या बना के भेजा है? अल्लाह ने कुरान में कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और तुम लोगों के लिए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन नमूना है। मुझे बताएं, हम अपनी जात से देखें, क्या हम इसी नमूने को सामने रख के दुनिया के सारे मामलात करते हैं? बताएं मुझे। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हमारे बच्चों के जिस तालीमी निज़ाम में वक्त गुजरते हैं, जो बचपन जवानियां, वो निज़ाम बिल्कुल उस नमूने को नेगेट करता है, और हमारे घर उस नमूने का बिल्कुल नमूना नहीं है। सोचें कि मैं और आप कितने बड़े मुजरिम हैं जब अल्लाह की इस किताब को समझ के पढ़ते हैं। अगर आप और मैं इन पे अमल करें, आप यकीन माने ये ऐसा माशरती निज़ाम है, घर का हो, मोहल्ले का हो, शहर का हो, मुल्क का हो, पाकीज़ा तरीन होगा। बड़ी आला आयात हैं जहाँ आपको रिसालत में मिल रही हैं। आले इमरान की 31 में अल्लाह ताला कहते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल इनसे पूछो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। हम सब का दावा है कि मैं अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। कुरान की किस आयत में है अल्लाह की मोहब्बत का मुतालबा? किस आयत में है? अशद्दु हुब्बुन लिल्लाह। अब यही डॉक्टर साहब बात है, आप लोग नोट नहीं लिखते। अगर लिखते होते ना तो ये आप 10 दफा बता चुका हूं
अल्लाह ताला सूरह बकरा की 165 लिखें, 165 में कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह से अहले ईमान सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, औलाद से, माल से, ये सारी जो ऊपर बातें आई हैं, ख्वान, अज़वाज, अशीरात और माल और कोठियों से, सबसे बढ़कर मोहब्बत किससे करते हैं? अल्लाह से। और अल्लाह से मोहब्बत का सबूत क्या है मेरी और आपकी जिंदगी में? कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए उस हुक्म की अताअत में हक अदा कर देना, इत्तबा करना। और इत्तबा का नमूना कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, बहुत उम्दा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं अपने नबी से, इनसे पूछो अगर तुम दावे करते हो ना कि तुम अल्लाह से सबसे मोहब्बत करते हो, जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, जो दीन का पहला उसूल है, तो अल्लाह कहते हैं फत्तबिऊनी, तो फिर तुम्हें करना क्या चाहिए? तुम्हें मेरी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, इत्तिबा करनी होगी। अगर ये करोगे, सुने, अल्लाहु अकबर, काश हम पूरी आयत को समझें। अल्लाह कहते हैं अगर तुम इत्तिबा रसूल करोगे ना, युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह ताला खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। कितनी बड़ा एजाज है, लेकिन ये एजाज किनको हासिल है? जो इत्तिबाए रसूल करेगा। इत्तिबाए रसूल और सल्लल्लाहु इसका हक अदा किया सहाबा और साहबियात। साहबियात ने। जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सिर्फ यही नहीं कि वो तुमसे मोहब्बत करेगा, वह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। अगर इत्तिबाए रसूल करोगे तो तुमने जो जहालत के ज़माने में या कुफर के ज़माने में, उस वक्त जो लोग काफिर थे फिर मुसलमान हुए, वो सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देगा, बशर्ते कि तुम एक काम करो, और वो मेरे और आपके लिए सबसे पहला काम यह है कि हम इत्तिबाए रसूल करें। कोई सवाल इस आयत पर? आगे चलें। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, बिला शुबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी जात पर मुकद्दम है। मैं जितना अपनी जात से मोहब्बत करता हूं ना, उससे ज्यादा किससे मोहब्बत करनी है? अल्लाह सल्लल्लाहु नबी अलैहि वसल्लम से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों अपनी जात से ज्यादा मोहब्बत करनी है? वो हमारे लिए आइडियल है, नमूना है, कैसे हमें कहता है ये जवाब बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक हम उनसे अपनी जान और माल से ज्यादा उनका बेहतरीन। आप इत्तिबाए रसूल नहीं कर सकते जब तक आप अल्लाह के रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करें। ये है इसका जवाब। ज्यादा मोहब्बत होगी तो ज्यादा इत्तिबा करेंगे। अगर मोहब्बत कम है, माल और जान और पीछे जो आयत गुजर चुकी है, मोहब्बतें उधर गई हैं, तो आप कभी भी अल्लाह के रसूल की इत्तिबा नहीं कर सकते। इत्तिबा के लिए लाजमी है मोहब्बत। अच्छा, ये मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब पैदा होगी कि हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करें? मुझे पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस मोहब्बत के हुसूल के लिए मुझे क्या करना है। जब उनके बारे में हमें पता होगा, उनकी पता के बाद छोड़े। मैंने आपसे सीधा सवाल किया है, सीरत मुबारका पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, कुरान और सुन्नत। जवाब बिल आखिर ये ठीक है, कुरान और सुन्नत, लेकिन अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होगी, सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी जब आपकी सिफात आलिया को पढ़ेंगे, सीरत पढ़ेंगे, कुरान में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको न सिर्फ नमूना बना के भेजा, बल्कि आप अल्लाह के मुकर्रर करदा जज थे उस अदालत के, मदीने की, आप उसके हुक्मरान थे, अल्लाह के अपॉइंटेड। किसी ने आपको वोट के नहीं जरिए दिया था। क्यों नहीं आप सोचते, क्यों नहीं आप समझते? तो सबसे ज्यादा अपनी जान से भी मुकद्दम जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। अब इस पे जो अगर आपको नहीं याद तो मैं याद कराता हूँ, हजरत
उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया। भला क्या है वो वाकया, जल्दी बताएं। सर एक किससे दफा मोहब्बत करते हैं तो उन्होंने कहा था अपनी जान को जा ज्यादा रहे थे रखा तो उन्होंने कहा था कि अपनी जान से, सिर्फ अपनी जान से नहीं ज्यादा बाकी सबसे बढ़कर आपसे मोहब्बत है। तो आपने हाँ फरमाया उसको अपनी जान को मुकद्दम रखा था सर। बस उन्होंने आप कहा यहाँ पे कि चुप हो जाते हैं। बात तो आगे हुई है कि हुजूर उन्होंने नबी करीम उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी फरमाया, वसल्लम ने उमर कहा था तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे। जी फिर सर। अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था मैं ठीक है, थोड़ी देर सोच के कहा है कि ठीक है मुझे अपनी जान से भी बढ़ के आपसे मोहब्बत है। बहुत उम्दा शबाना, बहुत उम्दा। अब अगर हजरत उमर ने पूरी जिंदगी सबूत दिया कि उनको अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से थी, इसलिए कि इत्तिबाए रसूल का हक अदा किया, तारीख आज भी, जमाना आज भी उनको याद करता है। कभी आप सतही इल्म की बुनियाद पर सतही मोहब्बत होगी। हजरत उमर जैसे आदमी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये कि आपको जान से अपनी ज्यादा मोहब्बत है। तो सोचा, गौर किया, उसके बाद कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैंने आपसे ज्यादा मोहब्बत है। तो जी सर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब बात बनी ना। पर हम चीजों को पढ़ते हैं समझने के लिए नहीं, अमल के लिए नहीं, बस मजे लेने के लिए। कोई सवाल सूरह अज़ाब की आयत 6 पर, और आगे फरमाया वो अज़वाजुहु उम्हातुहुम, और उस नबी की जो बीवियां हैं वो उनकी माएँ हैं। इसीलिए कुरान ने कहा कि उनसे कोई शादी नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लम जिसको की मौत के बाद, इसलिए कि वो माएँ हैं, उनका दर्जा देखें। कोई सवाल? आगे सुने। व यकूलून आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल सॉरी व यकूलून आमना बिल्लाहि व बिर रसूल व अताना। लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए और हमने इताअत कबूल की, ये जबान ना उनकी। लेकिन सुम्म यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, तो मगर इसके बाद इनमें से एक गिरोह इताअत से मुंह मोड़ लेता है। तो अल्लाह कहते हैं मा उलाइका बिल मोमिनीन, वो मोमिन नहीं है। जो अल्लाह और रसूल की इताअत ना करें वो मोमिन नहीं है। सोचें, अगर हम ये काम ना करें तो हम मोमिन नहीं हैं। तो इताअत रसूल और इत्तिबाए रसूल कितनी अहमियत की बात है कि जिसने इससे मुंह मोड़ा वो मोमिन नहीं है। आयत का बिल्कुल साफ सूरह नूर की आयत 47 में कि जो इताअत करें वो मोमिन कहलाने के मुस्तहिक हैं, जो इताअत न करें वो मोमिन ही नहीं है। सोचें, हमारा रिसालत पर ईमान है और हम इन चीजों को फॉलो क्यों नहीं करते? अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में तशरीफ लाए ना, उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ अल्लाह के खास ताईद और नसरत के बाद इस दीन को नाफिज किया। और फिर आपकी हैसियतें और कितनी बड़ी हैं, जरा आपके इस हैंड आउट में मौजूद हैं, कुरान से साबित मौजूद हैं। 4 आयतें हैं जो यहाँ पहले आई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुरब्बी, मुअल्लिम व मुरब्बी। अब मैं आपके सामने आयत पढ़ता हूँ, आपने मुझे अल्फाज बताने हैं जिसमें अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा आप मुअल्लिम हैं और मुरब्बी हैं। पहली आयत दुआ है बकरा की, मैं एक ही पढ़ूंगा इन चारों में से। रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खलीलुल्लाह हैं वो दुआ करते हैं कि अल्लाह इनमें एक रसूल भेज। ये आप काबतुल्लाह तामीर करते वक्त ये दुआ मांगते हैं, तो इसका मतलब है कि अहले मक्का में से एक रसूल भेज। मिनहुम, जो उन्हीं में से हो, यतलू अलैहिम आयाती। पहला काम क्या करे, जल्दी बताएं, बताएं। जो ताला के अहकामात की तारीफ है। अब यतलू का पूरा माना नहीं समझेंगे ना तो बड़ा जुल्म होगा, क्योंकि आयत में तलावत का मतलब है पढ़ के समझ के उसके पीछे चलना। ये है यतलू अलैहिम आयाती, कि
वो नबी क्या काम करे कि आयत पढ़ के भी सुनाए, उनको बरहक मानते हुए वही का जरिया से जो उनको मिला है पैगाम अल्लाह का, उसकी इताअत का हक अदा करते हुए उसको पढ़ें भी, समझाएं भी और उस पे अमल करें। इसलिए नबी कहता है अना अव्वलुल मुस्लिमीन, पहला फरमाबरदार इन अहकामात को जो अल्लाह भेजता है मैं खुद हूँ, पहला मुस्लिम मैं हूँ। नंबर 1, यतलू का माना ठीक ठीक समझें, यतलू अलैहिम आयातिका, तेरी आयात उनको पढ़ के सुनाए। आयात का मतलब यहाँ कुरान की आयात और अहकामात तालीमात हैं। वह युअल्लिमुहुल किताबा, और उनको किताब की तालीम दे, वल हिकमा, और हिकमत की तालीम दे, वह युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करे। क्यों कि आप इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, ये दो सिफात का तकाजा है। अल अजीज हैं, आप अहकामात भेजिए, आयात भेजिए। अल हकीम है, हिकमत सीखने के लिए आप ही की किताब से हिकमत सीखी जाएगी। अच्छा, अब पहले मैं पूरी आयत का तर्जुमा कर देता हूँ ताकि आप पूरी। रब्बना वब अस्फीहिम रसूलुम मिनहुम, अल्लाह इन्हीं में से एक रसूल भेज, यतलू अलैहिम आयातिका, जो तेरी आयात पढ़कर इनको सुनाए, उनकी तलावत करे। वह युअल्लिमुहुल किताबा, और उनको किताब की तालीम दे, वल हिकमा, और हिकमत की, वह युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करे। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक आप ही अल अजीज भी हैं और अल हकीम भी हैं। अच्छा, अब आपका कोई सवाल हो इस आयत के बारे में जल्दी से पहले, वरना फिर मैं सवाल करूं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस आयत के ऊपर हम जो टाइटल दिया है वो दिया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीत मुअल्लिम और मुरब्बी। अब लंबी चौड़ी बात आपने नहीं करनी, आपने मुझे ये बताना है कि इस आयत के अंदर मुअल्लिम का लफ्ज क्यों आया है, उसके लिए कौन से अल्फाज हैं, और मुरब्बी के लिए कौन सा लफ्ज आया है। जल्दी बताएं। भाई ये आयत कुरान में 4 दफा जी। युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ये मुअल्लिम के लिए है, और ज़कीम मुरब्बी के लिए। सब जब तज़किया होगा तो फिर मुरब्बी। सवाल मैंने एक किया है और आप, एक खातून ने बिल्कुल ठीक कहा, युअल्लिमुहुल किताबा का मतलब है कि आप मुअल्लिम की हैसियत आपकी, आप उस्ताद हैं इस किताब के। क्यों नहीं समझते आप? हैंड आउट आपके पास पड़ा है और पढ़ते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, सवाल का जवाब भी नहीं देते। और मुरब्बी जो तरबियत करता है, तरबियत इंसान की सबसे पहले होती है यतलू अलैहिम आयातिका, जब आयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के समझाते हैं, सुनाते हैं, उस पर अमल करके दिखाते हैं, तो वो तरबियत है, मुरब्बी। और फिर युअल्लिमुहुल हिकमा, उनको हिकमत सिखाते हैं, ये भी मुरब्बी है, तरबियत है। वह युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते हैं। तो पूरी आयत जो है जिसमें यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, ये मुरब्बी का काम है। अब समझ आई बात कि नहीं आई? जी सर। तो कुरान को इस तरह समझे ना ताकि हमें कुरान मजा दे। अच्छा, अब एक इन चारों आयत में एक फर्क है। दुआ में तो अल्लाह ताला से जब दुआ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो युज़क्कीहिम आखिर में आया है, देख रहे हैं आप। लेकिन बाकी आयत तीनों जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं यतलू अलैकुम आयातना व युज़क्कीहिम। तो युज़क्कीहिम जो है वो आया है किसके बाद? यतलू अलैहिम आयातना। क्या इसमें अल्लाह ताला ने तब्दीली क्यों बताई जब कबूलियत के वक्त युज़क्कीहिम को दूसरे नंबर पर रखा, हालांकि वहां पहली दुआ में आखिरी नंबर पर है। सर पहले अल्लाह ताला की आयत पढ़ी जाएंगी,
اور ان کو سمجھایا جائے گا. پھر اس کے بعد یزکیہم کا یہ ہے کہ تزکیہ کیا جائے گا عقائد کا، مال کا، تو پھر آگے احکامات آئیں گے. ارم بالکل آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے. اور کوئی؟ صاحب جی جب ہم تلاوت آیات کریں گے، اس کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کریں گے تو ہماری سوچ اور فکر کا تزکیہ ہوگا. عمل بات کی بات ہے. دیکھیں تلاوت آیات سے تزکیہ ہوتا ہے سوچ و فکر کا. اب جب سوچ و فکر کا تزکیہ ہو گیا تو پھر آدمی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ اس کو کتاب احکامات دیتا ہے. کیوں؟ اس کا تزکیہ فکر ہو چکی ہے، فکر اس کی بالکل قرآن و سنت کے مطابق بن چکی ہے، اب وہ عمل کرنے کے قابل ہے. یعلمہ الکتاب، بڑے غور سے سنیں، کوئی بولے نہیں بھائی، پہلے اسی لیے نہیں سمجھتے آپ. سر کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. یہ راشدہ احسان صاحبہ کا مائک کھلا ہوا ہے، بند کریں اس کو، اور بند کرو نا. جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تم کہاں گم ہوتے ہو؟ تو یہ بڑی نوٹ کرنے کی بات ہے. مجھے بڑا وقت لگا اس کو سمجھنے کے لیے کہ یزکی ہم نمبر 2 پہ اللہ نے کیوں قبول کیا. اس لیے کہ جب یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات تلاوت کریں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کا فکر بالکل قرآن کے مطابق ہو جائے گی. وہ ہے فکری تزکیہ. اس لیے تزکیہ یہاں آیا ہے کہ تزکیہ کی تو شروع ہو جاتی ہے، تزکیہ کی ابتدا شروع ہوتی ہے جب آپ تلاوت آیات کرتے ہیں. یہ بات آپ کی سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی تو سوال کریں. سر رپیٹ کر دیں. ہاں میں بالکل رپیٹ کرتا ہوں. دیکھیے تزکیہ ایک پہلے اگر فکر ٹھیک ہوگی نا، لکھیں عمل پھر ٹھیک ہوگا. اگر فکر میں کجی ہوگی تو یقیناً عمل میں بھی کجی ہوگی. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. جی سر. اچھا میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ لوگ جو قبروں پر جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کا کیونکہ عقیدہ کمزور ہے اس لیے عمل بھی کمزور ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ جب فکر ٹھیک ہوتی ہے تو عمل بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو تلاوت آیات سے میری اور آپ کی فکر ٹھیک ہوتی ہے. یہ پہلا تزکیہ ہے اور ضروری تزکیہ ہے کیونکہ عمل بعد کی بات ہے. تو جب میری فکر ٹھیک ہو جاتی ہے تلاوت آیات سے تو میرے پھر پتہ ہے ذہن میں کیا بات آتی ہے، کیونکہ میری فکر ٹھیک ہو جائے میں کہتا ہوں کون سے اعمال ہیں جن پر میں عمل کر کے اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کر سکوں. یہ میری کس وقت تمنا ہوتی ہے؟ جب میرے تلاوت آیات سے میری فکر پاک ہو جاتی. تو اس کے بعد یہ اسی کے بعد آیا ہے یعلمہ الکتاب، پھر نبی سے ان کو تعلیم دیتا ہے احکامات کی. ان احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ان کا عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ فکر ٹھیک تھی. اس لیے اب تزکیے کا عمل میں بھی معاملہ ٹھیک ہو گیا. والحکمہ، اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے. حکمت کیا ہے؟ کہ ٹھیک وقت پر ٹھیک فیصلے کرنا. آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی. کیوں؟ بر وقت ٹھیک فیصلے ٹھیک وقت پہ کیے. ہم نے غلط فیصلے کیے اور آج 70 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور یہ ملک تباہی اور بربادی کے گڑھوں میں گر گیا ہے غلط فیصلوں کی وجہ سے. حکمت نہیں تھی، وہ حکمت جو قرآن عطا کرتا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن سے تعلق نہیں رکھا، ہماری فکر ٹھیک نہیں تھی. اب سوچ لیں، دیکھیں، آپ اپنے ملک کو دیکھیں، اپنی ذات کو دیکھیں اور قرآن کی آیات کو دیکھیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اب آخر میں تزکیہ آیا. تزکیہ کا مطلب ہے کہ فکر کا بھی تزکیہ جو تلاوت آیات سے ہوا اور عمل کا تزکیہ جو یعلمہ الکتاب سے ہوا. ان دونوں کے بعد تزکیہ مکمل ہو گیا. تو یہ تھا یزکیہم آیا جب قبولیت بخشی اللہ تعالیٰ نے، کہ اس کے بعد آیا تلاوت آیات کے بعد.
अब कोई सवाल हो क्लियर कर लें, क्योंकि मुझे बड़ा वक्त लगा इसको समझने में। आपको आप मौका है, आप मुझसे सवाल करें अगर चीज समझ नहीं आई। जज़ाकल्लाह सर। बात क्लियर है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें, अब क्लियर है तो आप आगे चलें। ये आयत सूरह आल इमरान की 164 में अल्लाह ताला कहते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया। अल्लाह ने क्या मोमिनों पर एहसान किया, जल्दी बताएं। इस बासा रसूल हमारी हिदायत के लिए रसूल भेजे। डॉक्टर साहबा आदि बात मत किया करें। अल्लाह ने एहसान किया कि वो रसूल भेजा जो चारों काम करता है। ये चार काम और अल्लाह का रसूल एहसान, सिर्फ रसूल एहसान नहीं है, उस रसूल वो चार जो अहकाम अपने फर्ज मनसबी लेके आया है वो एहसान है असल में। बात समझ आई है कि नहीं डॉक्टर साहबा? जी सर समझ आइए। तो आपने देखा कि अल्लाह का अपना इसको एहसान कह रहा है। तो एहसान के मामले में इंसान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? जब कोई उस पर एहसान करता है तो फिर क्या करता है, जल्दी बताएं। उसका शुक्र अदा करता है, होता है। अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। फिर हम भी उसी तरह अल्लाह का जो इतना एहसान किया है हम इसकी कदर करें, उस नबी की कदर करें, उसको माने कि वो अल्लाह का बनाया हुआ रोल मॉडल है। और ये चारों काम जो तिलावत आयत, तज़किया, तालीम किताब और तालीम हिकमत का हक अदा करें, ये है इसका मफहूम। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? एक एक आयत अगर पढ़े ना समझें तो बड़ा ही मजा आता है। मसलन आप सूरत जुमा की आवाज बिल्कुल वही आयत है और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तर्जुमा कर रहा हूँ, वल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूला। अल्लाह ताला ही वो हस्ती है जिसने अनपढ़ों में रसूल भेजा। ये उम्मी क्यों कहा, अनपढ़ क्यों कहा अल्लाह ताला ने? इनके अंदर कोई जी छोड़ें नबी करीम छोड़ें छोड़ें, आप क्या क्या बात कर रही हैं? अल्लाह इनको उम्मी इसलिए कहा कि बनी इसराइल इनको उम्मी कहते थे, अनपढ़। अल्लाह का फजल देखें, अल्लाह का करम देखें कि अल्लाह ने इन्हीं अनपढ़ों में एक नबी भेजा जो क़यामत तक रोल मॉडल है। क्या बात कर रहे हैं आप? कुरान पढ़ते नहीं हैं आप, समझते नहीं हैं। उम्मी इसलिए कहा कि बनी इसराइल उन पे तंज है कि देखो इन्हीं उम्मियों को मैं एक रसूल भेज रहा हूं। एक मिनट में दोबारा कॉल करती हूँ, एक मिनट। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर बिल्कुल। अच्छा, उन्हीं उम्मियों में से एक रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, उन पर अल्लाह की आयत तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। वही बात। अब इस पूरी आयत को आप समझ जाएंगे। चार आयतें हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फराइज मनसबी, और अब आप देख रहे हैं कि उसी में अल्लाह ताला ने आपको पूरी इंसानियत का मुअल्लम और मुरब्बी बना के भेजा। अब ये हैसियत इन आयात से मुतय्यन होती है। कितनी जबरदस्त बात है, सोचें जरा। बात समझ आ गई है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, वरना सवाल करें। अब आगे देखें, शारे किताब, जो अगली आयत है ना सूरह नहल की, शारे किताब का मतलब क्या है, जल्दी बताएं। तशरीह करना सर, अहकामात की किस तरीके से कौन सा अमल करना है। आप बात ठीक कह रहे हैं, शारे किताब है, किताब से मुराद कुरान है। तो आप कुरान की शरीयत का हक कुरान की जो आयात है उसकी शरह करने का हक अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ और आयत का वो अल्फाज मुझे बताने हैं आपने कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के शारे हैं।
वअंज़लना इलैका ज़िक्र, और ये जिक्र हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया। ये जिक्र का लफ्ज किसके लिए है और क्यों है? कुरान पाक के लिए है। अच्छा, कुरान पाक के लिए क्यों जिक्र का लफ्ज आया है? नसीहत होती है सर, क्या होती है? नसीहत। कुरान पाक पढ़ के बंदे को नसीहत मिलती है, हाय हाय हदायत हाय। मिलती है। बात आपकी ठीक है, लेकिन सही बात नहीं है। सही बात यह है, बड़े गौर से सुने। डॉक्टर साहब, आप कुरान की बहुत अच्छी तालिब इल्म हैं। ये सब बातें जो मैं कहता हूँ, आप या तो मुझे बताएं कि मैं गलत कह रहा हूँ। कुरान याद दहानी है। याद दहानी, नसीहत से पहले क्या है? याद याद दहानी है। दहानी। और किस बात की याद दहानी करा रहा है? वो जो हमने अलस्त पे किया है कि अल्लाह आप ही हमारे रब हैं। तो रब का मतलब है कि आप उसका हुक्म मानेंगे। तो अल्लाह, कुरान इसलिए जिक्र है कि वो हमें याद दहानी करा रहा है कि तुमने तो अल्लाह से वादा अलस्त किया है ऑलरेडी, लिहाजा उस पे कायम हो जाओ। तो कुरान इसलिए जिक्र है कि इसने वो याद दहानी हमें याद कराई है। अब आगे सुनिए, लितुबय्यन लिन्नास, ताकि आप लोगों पर वाज़े खोल खोल के बयान कर दें, मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो उनकी तरफ नाजिल हुआ है। क्या नाजिल हुआ उनकी तरफ? कुरान कुरान सर, पाक। कहाँ? कुरान। अच्छा, तो इस आयत से नबी करीम सल्लम की शारे होने के कौन से अल्फाज हैं? तबय्यन, तबय्यना लिन्नास, नहीं, आगे पूरा पढ़ें। लितुबय्यन लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम, नाज़िल अलैहिम। फिर बात मुकम्मल होती है। अब बात समझ आ गई कि नहीं आई? आयत के मानी देखें, और आयत का मफहूम यह है कि रसूलुल्लाह सल्लम शारे किताब हैं। किताब की तशरीह करने का हक अल्लाह ने किसको दिया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बहुत एक एक आयत को नोट करें। अगली आयत है सूरह आल इमरान की 31 और 32। बड़े गौर से सुने। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अपने रसूल से फरमा रहे हैं कि ऐ नबी, इनसे पूछो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो फिर मेरी इत्तिबा करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारे से मोहब्बत करेगा। और फिर आगे कहा, कुछ और अल्फाज हैं बीच में, कुल अतीउल्लाह व रसूल, इनसे कहो कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें। फ़इन तवल्लौ, अगर मुंह मोड़ोगे इताअत से, तो फ़इन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। यहाँ काफिर से मुराद क्या है? आयत के अंदर रह के बताइए। जो अपनी मर्जी से अमल करता है सर, इत्तिबाए अताअत रसूल से सल्लल्लाहु इनकार, अलैहि वसल्लम अताअत नहीं रसूल, करता। अल्लाह और अताअत इतना रसूल, लंबे जवाब का क्या मतलब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत का इनकार है यहाँ पे। आप क्यों नहीं अल्लाह, कहते कि जो इत्तिबाए रसूल नहीं करता, अल्लाह उसको कह रहे वो काफिर है? जो उसके खिलाफ करता है, नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, अकीदा ठीक नहीं है, मामलात ठीक नहीं है, तो अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ऐसे काफिरों से मदद नहीं, अल्लाह ऐसे काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। इत्तिबाए रसूल कितनी जरूरी है। और यहीं से वो बात निकलती है कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए नमूना है, कि उसकी इत्तिबा करेंगे तो अल्लाह हमें मोमिन एक्सेप्ट करेगा और उसका कुर्ब हासिल होगा। और दूसरी आयत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है, वो सूरह अहज़ाब की आयत है। आयत पढ़ता हूँ मैं आपके सामने, सुने। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना जो अल्लाह ने मुकर्रर किया वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। किसके लिए? लिमन कान यरजुल्लाह व यौमिल आखिर, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और आखिरत का उम्मीदवार हो, जो यकीन रखता है कि क़यामत आएगी, और जो यकीन रखता है कि अल्लाह ही सब कुछ है। वो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर वो इस दावे में सच्चा है कि ईमान अल्लाह और रसूल पर उसका यकीन है, आखिरत पर यकीन है, तो फिर वो क्या करे? जल्दी बताएं। इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फिर उसको नमूना माने। कितनी बड़ी बात है, जरा इसके माने को अच्छी तरह समझें।
تو यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो नमूना है, पेशवा है। और चौथी आयत सुने, यामुरुकुम बिल मारूफ, वो तुम्हें नेकी का हुक्म देते हैं नबी करीम सल्लम, व यनहाहुम अनिल मुनकर, और उन्हें बुराई से रोकते हैं। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर यहाँ आ गया। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, वो उनके लिए हलाल और पाक चीज़ों को हलाल करार देता है और बुरी खबीस चीज़ों को हराम करार देता है। अच्छा, ये इसका क्या मतलब है कि युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। आप हलाल नबी, और हराम का बताता है आपको, कौन सी चीज हलाल है कौन सी हराम है। इसके ऊपर जो हेडिंग है ना कि रसूल बहसियत शारे, शरीयत का फैसला भी अल्लाह ने इख्तियार दे दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व यदउ अन्हुम इसराहुम, और उनसे वो बोझ उतारता है, व अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और उन पर जो चढ़े हुए हैं अगलाल उनको भी उतारता है। तो यहाँ यद ओ अनहुम इसरा, उनके बोझ उतारता है, वो जो खिलाफ अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उससे भी रोकता है, और फिर उनको जो बिद्दतें और जो शिरक और निफाक कर रहे हैं वो अगलाल हैं, वो उनके तोक हैं गले में, उससे उनको भी हटाता है। आपने देखा कि इन आयत के ऊपर हेडिंग लगे हुए हैं और वो हेडिंग इसी आयत के मानी से माखूज है। बहुत अच्छी तरह पढ़िए, समझिए, अल्लाह ताला आपको तौफीक देता है इस क्लास को अटेंड करने के लिए, और हम पूरी कोशिश करते हैं यहाँ कि आपको पूरी तरह इससे आगाही हासिल हो जाए ताकि आप कुरान इसी तरह पढ़ें। आगे अल्लाह ताला कहते हैं, देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें उसको मजबूती से पकड़ लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिससे रोकें रुक जाओ। क्या मतलब है इसका, जल्दी बताएं। अल्लाह रसूलुल्लाह का हर हुक्म अल्लाह ताबे है। जी, तो मजबूती से पकड़ लो साहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका पकड़ लो जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक। हाँ, जिस तरह आप अमल करते हैं, जो हुक्म आप देते हैं उसको पूरा करने का हक अदा करो, और जिससे मना करते हैं उससे रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, फिर आगे तीसरी बात कही कि अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, कि अल्लाह के अहकामात की पाबंदी इसी तरह करो जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, जिस तरह वो बुराइयों से बचते हैं बचें। आगे सिफत आई है इन अल्लाह शदीदुल इकाब, कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। ये क्यों एंड पे ये क्यों दो सिफात आई हैं, शदीदुल इकाब क्यों आया है? अगर सही से जवाब दीजिए, तुक्का मत मारिए। नाफरमानी करोगे तो फिर अल्लाह शदीद अजाब क्या देने मतलब, वाला है। क्या फिर बताएं। अगर अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करोगे, जो कुछ उन्होंने आकाम बताए हैं उस पर अमल नहीं करोगे, जिससे रोका है उससे रोकोगे नहीं, तो अल्लाह ताला शदीद अजाब देगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर इसकी खिलाफ वर्जी करोगे, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो अल्लाह ने रसूल सल्लम ने हुक्म दिए वो उसको आपने मजबूती से न पकड़ा, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिससे मना किया उससे बाज न आए, तो अल्लाह तुम्हें कैसे डील करेगा? शदीदुल इकाब। शदीदुल इकाब। जरा वार्निंग देखें, तंबीह देखें। क्या मैं और आप जब ये किताब पढ़ते हैं तो वाकई हम इसको सीरियसली लेते हैं? आज पाकिस्तान के लोगों को अल्लाह ताला इसी सिफत शदीदुल इकाब से डील कर रहा है। क्यों? इसलिए कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी वो पाबंदी नहीं कर रहे, जिससे मना किया उसे रुक नहीं रहे। देखें आप आज अपनी अपनी हालत को देखें, शायद कितनी बरहक है अल्लाह की। अजाब देखें किस किस्म के सैलाब आ रहे हैं। शदीदुल इकाब, सख्त सजा दे रहा है।
فرنٹیئر میں دیکھیں، سوات میں دیکھیں، دیر میں دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، اور اب بھی اگر ہم اللہ سے توبہ طائب نہیں ہوئے، اللہ کی طرف نہ پلٹے، جو کوئی دور دور آثار نظر نہیں آتے، جس حکومت کے قبضے میں سارا میڈیا ہے، الیکٹرانک، پرنٹ، وہ کبھی بھی اگر لوگوں کو دعوت دے، پہلے خود ٹھیک ہو جائے، توبہ طائب ہو اور لوگوں کو دعوت دے دے، تو اللہ کا عذاب آج بھی ٹل سکتا ہے۔ یہ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جی جی مانتے ہیں۔ فیصد صحیح ہے۔ تو مانتے ہیں تو اس پر عمل بھی تو کریں، ہم تو کم از کم کریں نا۔ اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی حیثیتیں دیکھیں، اب آپ لکھیں تاکہ آپ کو، ایک تو ہے کہ اللہ کا نبی بشیر اور نذیر ہے، سارے نبی انبیاء ہیں، بشارت ان کے لیے جو وہ دین لے کے آئے ہیں اس پہ عمل کریں، ان کے لیے بشارت، جو اس کی خلاف ورزی کریں ان کے لیے تنبیہ، اور دنیا اور آخرت میں ذلت، جیسے آج امت مسلمہ کی ہے، جیسے آج پاکستان کی ہے۔ نمبر 2، یہ نمبر پہلا آپ کا، یہ لکھیں تاکہ آپ کو، اور اب آپ دیکھیں، آپ کو میں نے بھیجا ہے، اور آپ پہلا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مربی، معلم و مربی، یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا ہو گیا، تیسرا کیا ہے جلدی بتائیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شارح کتاب ہے آخر میں۔ تیسرا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیشوا اور نمونہ، یہ چوتھا ہے۔ اور پانچواں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شارع عین کے ساتھ، اور پانچواں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قاضی، ساری چھٹا ہے یہ۔ اب 6 حیثیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہیں آپ کا مقام و مرتبہ۔ نوٹ کیا نہیں آپ نے؟ نوٹ کیا ہے۔ اچھا، آپ نے نوٹ کیا، تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اس چیز سے آگاہ کیا کہ تمہیں دنیا اور آخرت کے انعامات کے مستحق کب ہوگے؟ جب آپ اس 6 حیثیتوں کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے۔ مسز آصف بند کریں اپنا مائک۔ مسز سر یہ 5واں نمبر ہے، پیشوا اور قاضی۔ ابھی چھٹا رہتا ہے سر۔ آواز نہیں آتی۔ سر کی آواز کٹ گئی ہے شاید۔ جی سر کی آواز نہیں آ رہی، ابھی تو 6 7 8 رہتے ہیں۔ بس ٹائم بھی 1 منٹ رہ گئی۔ دوبارہ ریپیٹ کر لینا۔ پہلے آپ لوگوں نے شاید شروع کرنا لکھا ہو کہ سارے انبیاء بشیر تھے۔ انتظار کر لیں سارے لوگ، ہو سکتا ہے ان کے مائک میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو۔ کئی دفعہ کال بھی آ جاتی ہے نا۔ ٹائم بھی ہے، ختم ہو گیا ہے، 9 تو بج گئے۔ جس نے ٹھیک ٹھیک لکھا ہے نا 6 پوائنٹ، وہ ایک دفعہ ریپیٹ کروا دیں۔ یہ والا جو ہے ہینڈ آؤٹ، یہ سر نے کب بھیجا ہے؟ میرے پاس نہیں پڑا۔ سعدیہ ایک دفعہ آپ ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں ان سے۔ سر سے ڈانٹ کون کھائے، ادھر کوئی ہیلپ کر دے۔
सादिया अभी 2-3 दिन हुए हैं ये भेजे। 3 दिन पहले भेजा था सर ने सादिया। अच्छा ये है ना रसूल, ये सारे पॉइंट लिखे होंगे ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लम और मुरब्बी पहला पॉइंट है, और दूसरा है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर बहैसियत 5 पे हम लोगों ने पहुंचना है, वो करवाना था उन्होंने। नहीं, वो उन्होंने कहा था कि रिपीट कर दे काजी कोई, इसलिए रिपीट कर रही हैं। हाँ किसी ने। और तीसरा पॉइंट है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत पेशवा और नमूना तकलीद। और चौथा पॉइंट है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत शारे। और पांचवा पॉइंट है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत काजी। ये करवाना था शुबाना, ये वाला करवाना था उन्होंने नंबर 5। अच्छा ये हो गया, ये छठा लिख लेना, फिर जब सर ने किया फिर देख लीजिएगा ना आप। और छठा पॉइंट है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत हाकम व फरमारवा। ये 6 पॉइंट है। जज़ाकल्लाह खैर। आगे फर्दर भी ना 3 पॉइंट है सर ने जो इसमें भेजे हुए हैं। अफशा दवा आप लोग दुआ कर लें तो बस खत्म कर दें, क्योंकि काफी लोग चले भी गए, निकल रहे हैं बाहर, बहरहाल जी कुछ रह गए हैं। अल्लाह जी पाक हम लोग को तौफीक दे समझने की और अमल की, और हम लोगों के औलादों को अल्लाह पाक नेक करे, और तमाम दुनिया के मुसलमानों को, और हम लोगों का ये बैठना और समझना अल्लाह पाक कबूल कर ले, और हम लोगों की तौबा को कबूल कर ले। हम लोगों की तव्वाबुर रहीम वसल्लल्लाहु आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।